ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा अभय को पुस्तकों की छपाई पर सरस्वती ठाकुर का ऐतिहासिक उपदेश। अब आगे। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। Good morning, General Scott. Good morning, Your Excellency. Cecil? Good morning. Please be seated, gentlemen. I'm sorry to have called you here at such an early hour. I've received a very important and urgent communique from the Home Office. I'm always at your service, Your Excellency. The Germans have joined hands with the Italians. They've invaded France. They are expanding their territories very rapidly. The Home Office has requested that we mobilize all our troops. How does Your Excellency want the army to give its support? The Home Office has ordered us to recruit as many Indians as possible to fight against the Germans. I wonder how the Indian public will react. I can imagine there'll be quite an uproar. Put it here and go.
Why should we care about the opinion of the Indian public? After all, we are the rulers of this country, are we not? If someone joins our national army, surely we have the right to send him wherever we like, wherever we choose. Gentlemen. Yes, that's true. We're not recruiting them and paying them just to sit around doing nothing. But what I mean to say is that there's already so much political unrest in the country, and an action like this could agitate them even more. Besides, most Indians are simple farmers or idle philosophers, and raising an army from this lot will be very difficult. With all due respect, sir, some Indians actually make very fine soldiers, especially the Sikhs and the Gurkhas. Maybe. But our experience is that even if we give all kinds of facilities, still people don't join the army. Today, I understand that the total number is hardly more than 150,000. We will force them to join and make it so that they have no choice. Your Excellency, I would hardly think that this is a good time to make such a move. All over the country, this Mahatma Gandhi is getting tremendous support for the non-violence movement. A move like this could easily disturb the public. I don't mean to use direct force. Rather create a situation where they will be compelled to join the army. How are you planning to do that? We should burn all crops. We should commission all food stocks for the use of the army and the war effort. When the prices in the marketplace are inflated to such a degree that the ordinary man cannot afford to buy even his staple diet, he will be happy to join our army. Gentlemen, we shall have our army of Indians. दुनिया के हर कोने के लोग युद्ध के अभिशाप से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने जो अब तक ठोकरें और कड़वाहट झेली हैं, उसके बदले शांति चाहते हैं। ऐसी ही दुनिया वो चाहते हैं। उन्हें स्वर्ग का राज चाहिए, परंतु स्वर्ग का राजा नहीं चाहिए। परमेश्वर के बगैर स्वर्ग का राज चाहिए, ऐसा राज जो उन्हें नहीं मिल सकता। हमें उसी सर्वेश्वर के पास पुनः लौटना चाहिए। भविष्य में हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे विभिन्न देशों में शांति प्रस्थापित हो सके, जो हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित भी है। यदि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे तो ये सारे विचार धरे के धरे रह जाएंगे। हमें पुनः परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। बैक टू गॉड हेड। शांति की स्थापना आज के प्रत्येक देश की मुख्य आवश्यकता है। रोको। हेलो, आप तो कल मिले थे ना? कल जो मैंने आपसे पत्रिका ली थी उसे मैंने पढ़ा। दुनिया की स्थिति के बारे में मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। परंतु इसे आप क्या करने वाले हैं? मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, परंतु आपका विचार अच्छा लगा जिसमें आपने कहा है कि स्वार्थी वृत्ति ने इंसान को अत्याचारी और घमंडी बना दिया है। आदमी ने भगवान को दिल से निकाल दिया है, इसीलिए वो हो गया है स्वार्थी और लालची। हाँ, मैं सहमत हूँ। ईश्वर में विश्वास रखने से इंसान निस्वार्थी और दयालु बनता है। इंडिया इसका एक प्रमाण है। आप मुझे समझ सके, इससे मैं प्रभावित हूँ। मैं बहुत अचंभित हूँ कि इतनी भूखमरी के बावजूद लोग विरोध नहीं करते, बिना विरोध के मृत्यु को भी सह जाते हैं। मेरे देश में तो अब तक क्रांति हो गई होती। जब कोई परमेश्वर की महत्ता को स्वयं जानने लगता है तो उस पर निर्भर होना सीख लेता है। यदि मैं आपके देश इंडिया ना आया होता तो यह कभी नहीं समझ पाता कि भगवान में विश्वास इंसान को भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। इस देश ने मेरी आंखें खोल कर रख दी हैं। चाची जी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। आपका कार्यक्रम कैसा रहा? ओह बहुत ही बढ़िया, बहुत लोग वहाँ आए थे।
चाचा जी ने बड़ा ही अच्छा व्याख्यान दिया और लोगों ने पसंद भी किया। एक आदमी बहुत ही बोल रहा था, लेकिन चाचा जी ने उसे भी हराया। बड़ा मजा आया। हाँ, और कार्यक्रम के अंत में गोविंद ने मधुर कीर्तन गाया और प्रयाग ने मृदंग बजाया। अरे वाह। श्रीधर महाराज कहाँ हैं? महाराज ऊपर हैं। जाओ हाथ मुंह धो लो, प्रसाद तैयार है। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ख्याल है गोविंद? हाँ मैं भी। महाराज। अभय चरणारविंद प्रभु, आप आ गए? हाँ, हम अभी लौटे हैं। एक विज्ञान शाखा का विद्यार्थी आपके लिए आया था। उसने आपकी बैक टू गॉडहेड पत्रिका पढ़ी, उसमें उसे रुचि लगी। मैंने उससे बात की। बहुत मेधावी लड़का था। ओह, ये तो अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अधिक नहीं, प्रतिसाद तो मिल रहा है, पर बड़ी धीमी गति से। ऐसे लेख पढ़ने में ज्यादा लोगों को रुचि नहीं है। आप क्या लिख रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ प्रार्थना गीत लिख रहा हूं। ओह, जरा दिखाइए। देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दावदह दग्ध दुख खंडितम। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या सुंदर प्रार्थना है। देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दावदाह दग्ध दुख खंडितम। कृष्ण नाम सिधु धाम धन्य दान सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। 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 अभय प्रभु, कैसे आना हुआ महाराज? मैं गोविंद के साथ मायापुर छोड़ रहा हूं। आपका क्या विचार है? आप भी शहर छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। नहीं अभय प्रभु, आपको जाना चाहिए। जापानी लोग बम गिराने वाले हैं। उन्हें बम गिराने दीजिए। मैं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहूंगा। आखिरकार मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है। मेरा काम श्री कृष्ण पर निर्भर करता है। मैं उसी नाम का जाप करूंगा। वही पवित्र नाम स्मरण मेरी रक्षा करेगा। यदि मैं उस परमेश्वर का नाम स्मरण करते करते मर भी गया तो भी उसके पास ही जाऊंगा। इसलिए हर तरह से मुझे तो लाभ होना ही होना है। अभय प्रभु, आप सच कह रहे हैं। हाँ, हमें सुरक्षा के लिए भौतिक सहारा क्यों चाहिए? वास्तविक सच्चा सहारा तो श्री कृष्ण के पदम पद हैं। मैं भी आपके साथ रहूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा महाराज। अब हम सड़कों पर जाकर हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। चलिए चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज? हम हरि नाम का संकीर्तन करने बाहर जा रहे हैं। क्या हम नवद्वीप नहीं जा सकते? मैंने अपना विचार बदल दिया है। हम कलकत्ता की सड़कों पर संकीर्तन करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो। मैं भी साथ चलूं? हाँ, जरूर। वे सभी मौत के डर से भागे जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखेंगे कि बमबारी होने के बावजूद हम बिना डरे भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं तो वो जान जाएंगे हमने मृत्यु पर विजय पाली है। शायद उसी समय वे हमें गंभीरता से लेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से जुड़ेंगे। तो चलिए कार्य आरंभ करते हैं।
हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। आज का समाचार देखिए, 10,000 से भी ज्यादा लोग नोआखाली के दंगों में मारे गए। हाँ, जब हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर जा रहे थे तो मुसलमानों ने रेलगाड़ी रुकवाई, ब्रिज पर सभी यात्रियों को मार गिराया और उनके शव नदी में फेंक दिए। क्या यही आजादी है? क्या ऐसी ही आजादी हम चाहते थे? मेरे चारों भाइयों का परिवार और कई रिश्तेदार बंगाल के उसी भाग में रहते हैं। पता नहीं वे आज जिंदा भी हैं या नहीं। ओह, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत से लोग पूर्व बंगाल छोड़कर यहां आ रहे हैं। हो सकता है कि उनमें तुम्हारे रिश्तेदार भी हो। कितना दुखदाई। इतने साल आजादी प्राप्त करने के लिए किए हुए संघर्ष का एहसान। क्या आपको यह सब कैसा लगता है अभय बाबू? देखो, इन सारी तकलीफों का एक ही कारण है, श्री कृष्ण को भूल जाना। इसलिए बगैर श्री कृष्ण की शरण में जाए हम यदि अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमें दुखी प्राप्त होगा। उन लोगों का संघर्ष बहुत कठिन था जो आजादी के लिए लड़े। उन्होंने सोचा था इस संघर्ष के बाद मिलने वाली आजादी देश के लिए शांति और बहुत बहुत उन्नति लेकर आएगी। उन लोगों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत माता के पुत्र एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। परंतु आप देश का क्या भविष्य देखते हैं अभय बाबू? अस्तु, मैं चारों तरफ दुखी देख रहा हूं। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये नेता लोग भोली भाली जनता को हमेशा बेवकूफ बनाते रहते हैं। अपने छोटे मोटे लाभ के लिए ये लोग अपने देश को शत्रु के हाथ बेचते हैं। जिन लोगों के मन में देश के प्रति कोई ईमानदारी नहीं, ऐसे लोग भोली जनता के मतों के बल पर बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं, बताइए? इसलिए इससे भी बुरी स्थिति के लिए तैयार रहिए। इस आजादी ने केवल मुसीबतें और समस्याएं बढ़ाई हैं। इस देश में शांति और उन्नति तभी आएगी जब नेता आस्तिक बनेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे। परंतु हमारे नेता महात्मा गांधी तो आस्तिक ही हैं। वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वे आस्तिक नहीं हैं। उन्होंने आस्तिक होने का प्रदर्शन तो किया, लेकिन उतना काफी नहीं है। जब तक वो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, तो वो आस्तिक कैसे कहला सकते हैं? मैंने आपसे साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया था, परंतु आपके व्यस्त सचिवों के पास जवाब देने का समय नहीं है। एक शुभचिंतक के नाते मैं आपसे कहता कि राजनीति से जल्द से जल्द हट जाए, यदि आप अपमानजनक मृत्यु नहीं चाहते। जब तक आप राजनीति से संन्यास नहीं लेते और पूरी तरह से भगवत गीता का प्रचार नहीं करते, जो हर महात्मा का कर्तव्य है, आपको अपमानजनक मृत्यु झेलनी ही होगी। जब तक आप राजनीति से संन्यास नहीं लेते और पूरी तरह से भगवत गीता का प्रचार नहीं करते, जो हर महात्मा का कर्तव्य है,
आपको अपमानजनक मृत्यु झेलनी ही होगी। अभय बाबू, आप एक औषधि वितरक हैं, फिर भी अधिक से अधिक समय आप भगवान और आध्यात्मिक विषयों पर बोलते हैं। यही वास्तविक औषधि है जिसे मैं वितरित करने आया हूं। आपका मतलब? इस संसार में फैली आध्यात्मिक बीमारी को दूर करने के लिए औषधि का वितरण ही मेरा व्यापार है। आध्यात्मिक बीमारी? हाँ, साधारणतः लोग अपनी भौतिक बीमारी जानते हैं, मानसिक और शारीरिक बीमारी, लेकिन उनकी वास्तविक बीमारी है श्री कृष्ण को भूल जाना। इस बीमारी को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए और औषधि दी। आपका मतलब भगवत गीता? हाँ, मैं चाहता हूँ सब भगवत गीता का पठन करें और उससे शिक्षा ग्रहण करें। परंतु अभय बाबू, भारत में आमतौर पर भगवत गीता की महत्ता को सभी जानते हैं, और मैं जब युवा था तो मैं भी प्रतिदिन पढ़ता था। हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन सही मायने में क्या आपने समझा कि भगवत गीता का सार क्या है? सही मायने में तो कुछ नहीं समझा। मैं बस उसे एक संस्कार के रूप में पढ़ता था, परंतु मैंने उसके सही अर्थ को समझने की कभी कोशिश नहीं की। इसीलिए हमें भगवत गीता वैसे ही सीखनी चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने उसे समझाई और अर्जुन ने उसे समझी। इसीलिए मैं अपने गीता के अनुवाद को भगवत गीता की तरह ही कहता हूं। आपका अनुवाद? हाँ, मैंने भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया है अपनी टिप्पणियों के साथ। सचमुच यह आश्चर्य की बात है अभय बाबू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई अर्थ सहाय करने वाला मुझे मिले तो मैं इसे प्रकाशित करूंगा और गीता उपदेश पर व्याख्यान भी दूंगा। अभय बाबू, मैं किसी को जानता हूं, एक धनी व्यक्ति डॉक्टर अलगप्पा। वे बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो एक दानी व्यक्ति भी हैं। उन्हें दक्षिण का बिरला कहा जाता है। मैं उनसे बात कर सकता हूं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। हाँ। आइए चलते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मिस्टर अलगप्पा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मुत्तुस्वामी, आइए, यहां आइए, यहां बैठिए। थैंक यू। अलगप्पा जी, अभय बाबू एक संत प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। यद्यपि वे एक व्यापारी की हैसियत से काम कर रहे हैं, फिर भी वे ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे महात्मा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा था, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसे ये अभी छपवाना चाहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन इसके प्रकाशन से ये धन नहीं कमाना चाहते। आप लोग कितनी प्रतियां छापना चाहते हैं? कोई 5000। शुरुआत के लिए इतनी काफी है। आप अनुवाद ले आइए, मैं उसे छपवाने का प्रबंध कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अलगप्पा जी, आपका बहुत बड़ा उपकार है ये। मैं फौरन कलकत्ता जाकर अपना लिखा अनुवाद ले आता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर मद्रास में रहने को तैयार हूं जब तक किताबें छप नहीं जाती। मिस्टर अलगप्पा, आपको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास। क्या तुमने मेरी भगवत गीता के अनुवाद को देखा है? जब मैं गया तो वो मेरे मेज पर ही था। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। क्या कोई इस कमरे में आया था और कुछ ले गया हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। प्रयाग, प्रयाग। हाँ बाबा। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरा भगवत गीता का अनुवाद कहाँ है? वो यही मेज पर था जब मैं यहां से गया। तुमने देखा उसे? नहीं बाबा। ये क्या हो रहा है?
ये तो बहुत अच्छा मंदिर है। हम उसे भारती भवन कहते हैं। चलो एक नजर से देखते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यह मंदिर बहुत वर्षों पहले धनी वैष्णव राधाबाई की स्मृति में बनाया गया था, लेकिन अब उसे उपयोग में नहीं लाया जाता। डॉक्टर मिश्रा, जिन्हें आप पहले भी मिल चुके हैं, उनके कुछ कमरे यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। डॉक्टर मिश्रा कहाँ रहते हैं? यहाँ पर। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा आप भीतर हैं? आइए आइए, कितना सुखद आश्चर्य है। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं। जी हाँ, यहाँ मेरे 2 कमरे हैं। ये तो बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ बहुत शांति भी होगी। हाँ, ये सही है, लेकिन यहाँ जगह खाली है। मैं अनुमति पाने के लिए किससे संपर्क करूँ? श्री रेवाशंकर भायल जी यहाँ की देखरेख करते हैं। भायल जी रहते कहाँ पर हैं? यहाँ ज्यादा दूर नहीं, पास ही रहते हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं। मेरे विचार में यदि आप श्री राम मित्र से मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे आपके प्रशंसक हैं और श्री भायल के नजदीकी मित्र भी हैं। श्रीमान भयाल, श्रीमान भयाल। आपको देखकर आनंद हुआ श्री मलिक, कृपया बैठिए। धन्यवाद। मैं श्री अभयचरण डे को लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। जी श्रीमान डे, राम मित्र जी ने बताया था कि आपकी भारती भुवन में आश्रम स्थापित करने की इच्छा है। जी। अभय बाबू ज्ञानी व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं। झांसी के कई जाने माने लोग इनके आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करने लगे हैं। यदि इन्हें आश्रम प्रस्थापित करने की अनुमति मिलेगी तो सारी झांसी लाभान्वित होगी। आजकल वो जगह शायद ही उपयोग में आती है और ये एक अच्छा कार्य भी है। तो श्रीमान डे यहाँ आश्रम स्थापित कर सकते हैं। क्या उन्हें कोई किराया देना होगा? नहीं, ये सब धर्मार्थ दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश उचित रीति से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। हम उसे भक्त संगठन कहेंगे और भारती भवन उसका प्रधान कार्यालय होगा। भले ही ये हमारी छोटी सी शुरुआत है, परंतु एक दिन यह विश्व भर में फैल जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी और उनके शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजीव, तुम यहाँ हो? जी, मैं श्रीमान डे से मिलने आया था। वो तो मंदिर में रहेंगे। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जी।